Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are well. So today we are going to discuss our topic, that is US-Iran relations. But specifically हम इस topic में discuss करेंगे JCPO को, that is Joint Comprehensive Plan of Action, also called as Iran Nuclear Deal. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि how were the US-Iran relations in past and in present. सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमेशा से there were worse relations between Iran and US? So the answer to this question is no. Because before the 1979 Iranian Revolution, there were cordial relations between Iran and USA. Before 1979, there was Mohammad Raza Shah Pahlavi, who was a monarch. He was called the king of the imperial state of Iran. He was pro-America. Therefore, there were cordial relations between Iran and US before 1979. So, Mohammad Raza Shah Pahlavi ruled from 1941 until he was overthrown in the Iranian Revolution in 1979, and then he was replaced by Ayatollah Ruhollah Khomeini, who was then made the supreme leader of Iran. And it is pertinent to mention that he was anti-America and he was also against Israel. So basically this was the time when the relationship between US and Iran began deteriorating, and this relationship has worsened over time. So basically the thing is that 1979 से पहले रज़ा शाह पहलवी की गवर्नमेंट थी एंड ही वॉज प्रो अमेरिका, इसलिए उस टाइम में ईरान और यूएस के बीच बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे. बट आफ्टर द इरानियन रेवोल्यूशन ये ताल्लुकात ख़राब हो गए बिकॉज द इरानियन रेवोल्यूशनरीज वर एंटी अमेरिका एंड एंटी इसराइल. एंड ये राइवलरी तभी शुरू हो गई थी जैसे ही ईरान में 1979 में रेवोल्यूशन आई थी. एंड ऑब्वियसली आफ्टर दिस US has been imposing sanctions on Iran on and off. That means कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि US ने ईरान पर sanctions impose किए हों, बिकॉज 1979 के बाद से ही US ईरान पर sanctions impose करता हुआ चला आ रहा है. एंड फर्स्ट टाइम US ने 1979 में ही ईरान पर sanctions impose किए थे बिकॉज द Iranian revolutionaries, some Iranian revolutionaries besieged the US embassy in Tehran, and they also chanted slogans of death to Carter and death to America. So you see the extent of rivalry. At that time Carter was the president of America. लेकिन फिर बाद में in 1981 America lifted those sanctions on Iran. But throughout the 1980s decade, America had been imposing sanctions on and off. But then again in 1995, US President Clinton called for the expansion of the US sanctions on Iran because America accused Iran for supporting Hezbollah, Hamas and other organizations that were designated as terrorist organizations by US. So इसी वजह से प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए हुए थे उनको और ज़्यादा मज़ीद सख्त कर दिया. सो द पॉइंट इज़ के टाइम टू टाइम ऐसे इवेंट्स बने हैं जिसकी वजह से US ने ईरान पर सैंक्शंस इम्पोज किए हैं. एंड द करंट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ द ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. सो नाउ लेट्स कम डायरेक्टली टू द ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. तो अगर हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो हमें ये बात सामने आती है कि ईरान इज़ द सिग्नेटरी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और उसके मुताबिक ईरान को ये इजाज़त नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करे. टू टेल यू अबाउट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इस्टेब्लिश की गई थी 1969 में एंड इट वाज इन्फोर्स्ड इन 1970. So Iran became a signatory of this treaty. So after signing this treaty, it was incumbent upon Iran to not indulge in
nuclear weapon production. मीन्स के अंडर दिस ट्रीटी, आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी, ये ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ईरान पे मैंडेटरी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा. ऑल्दो ईरान कैन यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर सिविल पर्पसेस, फॉर सिविल nuclear energy programs. By saying civil nuclear energy program means that Iran can use nuclear energy for research and development purposes or technological purposes or for medicinal purposes, but it cannot utilize this nuclear energy for the production of nuclear weapons. And it is mandatory upon all the signatory states of NPT that they have to comply with these conditions. That number one is that they do not have to produce nuclear weapons. They do not have to utilize nuclear energy for the purpose of production of nuclear weapons. Alright, but if they want to use nuclear energy for the purpose of civil nuclear energy programs, then they are allowed to use it. And if they develop civil nuclear energy plants, then there will be persistent, constant monitoring of those programs to verify after every 6 months that nuclear energy is being mainly for civil purpose. Means कि वो तमाम countries जो कि अपने civil nuclear energy programs develop करेंगे, तो उनकी after every 6 months उनकी monitoring की जाएगी. और वो monitoring किसकी तरफ से होगी? जो कि UN का watchdog है, that is International Atomic Energy Agency. Alright, ये एक agency है that will monitor the country's civil nuclear energy programs in order to verify that the state or the states are complying with the rules of the NPT. So initially 1979 से पहले ईरान के पास civil nuclear energy program था. There were about 3 power plants that were working for civil purposes. So basically ये हुआ था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इशू तब हुआ जब 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी उन्होंने ये ऐलान किया कि अब से ईरान न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेगा, नॉट इवन फॉर दी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स. मीन्स दैट दे अनाउंस्ड दैट दे आर डिसकंटिन्यूइंग यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इवन फॉर पर्पस ऑफ दी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. So obviously when they are abandoning the use of nuclear energy, so obviously there is no need for inspection by the IAEA, as Iran was taken out of list of the countries that were operating civil nuclear energy programs. So obviously there was no need. IAEA के लिए अब ज़रूरत नहीं थी कि वो ईरान जाए इंस्पेक्शन के लिए. ऑलराइट, क्योंकि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी उस टाइम के जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब वो किसी भी लिहाज से किसी भी इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ नहीं करेंगे. सो ये समझ लें कि ये मामला न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड ईरान का मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. एंड इट वाज रिकग्नाइज्ड एट ग्लोबल लेवल के ईरान इज़ नॉट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनी पर्पस. बट फिर क्या हुआ कि इन 2000 और आई थिंक 2001 देयर वर सैटेलाइट पिक्चर्स shared which revealed that Iran was using nuclear energy, because on the satellite pictures there were shown operational nuclear energy plants. मतलब कि 2001 था या 2000 था, तब क्या हुआ कि सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ आई थी सामने. ठीक है, उन सैटेलाइट पिक्चर्स में क्या शो हो रहा था? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शो हो रहा था जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल था. मीन्स दैट ईरान हैड टोटली ऑपरेशनल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. और जब ईरान से इस बारे में पूछा गया तो ईरान सैड दैट दे हैव सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स. बट इस इवेंट ने वर्ल्ड वाइड जो सारी नेशंस थी और UN था उसे अलार्म कर दिया था, और everyone was alarmed by this confession, because everyone कि अगर ईरान सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी यूज़ कर रहा है
but still somehow it is using nuclear energy. तो as per NPT ईरान को ये इन्फॉर्म करना चाहिए था, UN और IAEA को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इट इज़ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इट्स सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, और ईरान ने नहीं बताया. इट मीन्स दैट it was involved in covert nuclear activity which is in violation of NPT. And obviously US felt threatened by such covert activity of Iran, so they demanded UN to hold Iran accountable for this covert activity. And then from US it was demanded कि ईरान जो है फौरी तौर पर अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को स्लो डाउन करे, नहीं स्लो डाउन ना करे बल्कि completely stop कर दे. And also in compliance with the NPT, it should give access to IAEA so that they could verify that Iran is operating its civil nuclear energy program and it is not involved any illegal activity or in the production of nuclear weapons. जब ईरान के आगे ये सारी डिमांड्स रखी गई तो ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया on the pretext that they will not allow IAEA to access their nuclear program because इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस एजेंसी में अमेरिकन स्पाइज हो सकते हैं जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दैट इज़ वाई दे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दीज डिमांड्स. लेकिन फिर बाद में निगोशिएशंस हुई, टेबल टॉक्स हुई और उसके बाद ये तय पाया कि ईरान विल अलो लिमिटेड एक्सेस. Iran will give limited access to International Atomic Energy Agency to monitor Iran's nuclear program, civil nuclear energy program of Iran, and verify that it was used for civil purpose, not for the production of nuclear weapons. But you know that Iran ने limited access तो दिया था IAEA को, but US डिमांड थी कि Iran should completely halt its civil nuclear energy program and give full access to IAEA and allow it to inspect and verify that Iran has not been involved in any nuclear activity. And if found guilty, then Iran will not be allowed to resume its nuclear energy program. But ये demand ईरान की तरफ से नहीं मानी गई. Iran completely refused it. And in response, US sanctioned Iran. And at one time, situation got so tense that both countries, both states were on the brink of war. But then then United Nations and European Union intervened to stop it. Then efforts were made to resolve the conflict with negotiations, and then at last, President Obama made efforts to come to some agreement or come to some consensus with Iran over nuclear deal. And then finally, after 2 years in 2015, an agreement was signed between Iran and P5+1. That agreement is known as Iran Nuclear Deal. And that deal is officially called as JCPOA, that is Joint Comprehensive Plan of Action. And it was signed between Iran and P5+1 states. P5 means 5 veto powers and +1 is Germany. So at that time, the Secretary of State of US was John Kerry. And this agreement, this deal was endorsed by United Nations Security Council. Now the question arises that what was in the deal? So as per the deal, Iran would give some concessions and in return it would receive some concessions. मतलब कि प्रेसिडेंट ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में ये इस डील पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई थी 2013 में, एंड फाइनली एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड एंड इन 2015 ये डील फाइनली साइन हो गई थी, ठीक है. और इस डील को नाम दिया गया था ईरान न्यूक्लियर डील और इसका ऑफिशियल नेम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. और ये साइन की गई किसके बीच में? ईरान के बीच में और P5+1 यानी 5 वीटो पावर्स of the UNSC and 1 Germany. And also it is important that this agreement, this deal was endorsed by United Nations Security Council. और as per this deal,
कुछ कंसेशंस दी गई थी ईरान को, कुछ कंसेशंस ईरान ने देनी थी जिसके बदले में ईरान को कुछ कंसेशंस मिलनी थी, और इसमें कुछ सर्टन पॉइंट्स थे जिस पे ईरान को वर्क करना था. नंबर 1 वाज दैट ईरान वाज आस्क्ड टू गिव फुल एक्सेस टू IAEA, यानी ईरान को कहा गया कि वो फुल एक्सेस देगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन को, so that they could verify that Iran is not involved in any illegal activity or nuclear activity. और ईरान को ये भी कहा गया कि it should significantly reduce the pace of its nuclear program. Alright, और उसको इस बात पर अमल कराने के लिए उसे कहा गया कि जो ईरान के पास ऑलरेडी enriched यूरेनियम मौजूद है, that Iran will sell out to Russia. ठीक है. और इसके अलावा ये कहा गया कि ईरान के पास जितने भी सेंट्रीफ्यूग्स हैं, सेंट्रीफ्यूग्स आर यूज्ड फॉर इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम. तो ईरान के पास बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूग्स मौजूद थे. तो ईरान से ये भी कहा गया कि वो अपने सेंट्रीफ्यूग्स को 80% तक रिड्यूस कर देगा एंड विल ऑपरेट ओनली 20% ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स ऑफ ऑल दैट ईरान हैड एट दैट टाइम. और थर्ड कंडीशन ये रखी गई कि ईरान जो है वो अपनी जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको रिड्यूस कर देगा अप टू 3.67%. ऑलराइट, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए जितनी यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए होती है वो होती है 90% यूरेनियम इनरिचमेंट. ऑलराइट, दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है. और ईरान से कहा गया कि वो अपनी जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो रिड्यूस कर दे, जस्ट 3.67% तक यूरेनियम अपना इनरिच करे, एंड दैट इज़ इनफ टू ऑपरेट सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. सो इसलिए उसे कहा गया कि वो अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट बहुत कम कर दे. दैट वाज अबाउट 3.67%. तो ये सारी कंडीशंस रखी गई थी कि ईरान को इस पर अमल करना है. ठीक है, एज़ पर द ईरान न्यूक्लियर डील. और बदले में ईरान को क्या मिलेगा? ईरान रिसीव्ड अ फ्यू कंसेशंस. ठीक है. सो इन रिटर्न इट वाज सेड दैट in return for if Iran fulfills these conditions, then after 6 months of the signing of deal, if Iran is found to be compliant with the conditions of the Iran nuclear deal, then क्या होगा कि जो sanctions हैं वो gradually lift कर दिए जाएंगे ईरान से. It was said that if within first 6 months of the signing of the deal, if Iran is found to be compliant with the Iran nuclear deal, then gradually sanctions will be lifted on Iran, and that compliance will be checked by International Atomic Energy Agency. ठीक है, मतलब जनरली ये कहा गया कि ईरान की compliance चेक की जाएगी. ठीक है, न्यूक्लियर डील के साथ ईरान जो कंडीशंस पेश की गई थी न्यूक्लियर डील में, उनके साथ ईरान की compliance चेक की जाएगी, एंड उसके बाद फेज्ड मैनर में आहिस्ता आहिस्ता ईरान पर से सैंक्शंस ईज़ किए जाएंगे. ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सैंक्शंस विल बी लिफ्टेड ऑन ईरान. तो अगर डील साइन करने के फर्स्ट 6 मंथ्स तक अगर ईरान फुली कंप्लाइंट मिला डील के साथ, तो ग्रेजुअली जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट कर दिए जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा वो होगा कि 5 इयर्स तक देखा जाएगा कि ईरान अब भी कंप्लाइंट है या नहीं है. ठीक है, जो IAEA है वो मॉनिटर करेगा कि टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ मच ईरान इज़ कंप्लाइंट विद द कंडीशंस ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील. ठीक है, अगर फिर भी 5 इयर्स तक भी ईरान फुली कंप्लाइंट मिला तो ईरान पर से तमाम सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस और मिलिट्री सैंक्शंस और इवन आर्म्स एम्बार्गो. लेकिन इस 5 इयर्स वाली कंडीशन के नीचे एक सब कंडीशन रखी गई थी कि अगर इन 5 इयर्स के बीच में किसी भी सिग्नेटरी ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील, जो भी सिग्नेटरी स्टेट्स थी P5+1, उनमें से अगर कोई एक स्टेट भी ईरान की कंप्लेन करेगी यूनाइटेड नेशंस को कि ईरान इज़ वायलेटिंग द ईरान न्यूक्लियर डील, देन क्या होगा कि देयर विल बी ऑटोमेटिक रीइम्पोजिशन ऑफ sanctions on Iran, and this action was called as snapback.
मतलब कि अगर उन 5 साल के दौरान अगर P5+1 में से कोई भी एक स्टेट UN सिक्योरिटी काउंसिल को कंप्लेन करती है कि ईरान जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील की कंडीशंस को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसे वेरीफाई कराया जाएगा। और अगर वाकई में वो वेरीफाई किया गया और ईरान को नॉन कंप्लाइंट पाया गया डील के साथ, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली उस पर सारे सैंक्शंस दोबारा से लगा दिए जाएंगे, ठीक। और डील में इस एक्शन को कहा गया स्नैपबैक। सो यू नो दैट दिस डील वाज साइंड इन 2015 जब US प्रेसिडेंट ओबामा थे और ईरानियन प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी। प्रेसिडेंट ओबामा पावर में थे तो तब तक ईरान वाज फाउंड टू बी कंप्लायंट विद द डील, ठीक है। लेकिन जब ट्रंप आए तो इनिशियली ही डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ ईरान विद द डील, ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ये हुआ कि IAEA ने इन्फॉर्म किया UN सिक्योरिटी काउंसिल को कि देयर वर 2 occasions on which Iran was found to be violating the conditions of Iran nuclear deal, all right. And then International Atomic Energy Agency ने कहा कि they communicated this issue with the Iranian officials and they have admitted their mistake and they have agreed not to repeat the mistake. So यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिसाइड हुआ था, मतलब P5+1 की तरफ से ये डिसाइड हुआ था कि इट्स ओके, अगर उससे एक बार गलती हो गई है, उसने अपनी गलती को माना है, तो और दोबारा से ये प्लेज किया है कि इट विल नॉट रिपीट द मिस्टेक, सो लेट्स गिव इट अ चांस। लेकिन US जो है दैट यूज्ड दिस एज एन एक्सक्यूज टू विड्रॉ फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील।